Okay, let's start now. In our previous meeting, we came to know about some basic formulas of Excel. Today, in very first step, we will repeat the sum formula, and after that, I will show some more interesting commands to you. Okay, now I am showing you the formula of sum. Suppose this is the table, and we want to calculate the sum of it. First of all, press is equal to sign. Is equal to sign is must before any formula, because if we don't use this equal to sign, it means we are entering just a normal text or data into the cell. But if we press equal to sign in front of any value, it means here we are going to feed a formula or start a formula. Okay, so equal to sign is must. Now equal to sign, then you can make simple calculation like this. Select first value, then plus sign, another value, again plus sign, and third value. And after that, when you finish the calculation portion or formula portion, at the last of it, press enter key. And you will get the total of the prescribed or selected cells. In the same way, you can make calculation or make the total of another cells also, but there is no need of it. You just click on the output and you can see the एक छोटा सा बॉक्स आपको नजर आएगा इसके अंदर, and when you bring your mouse cursor on it, it will convert it into plus sign, right? When it change into plus sign, drag it and release the mouse out the range. Okay beta, so in this way we can calculate it. After that, if we want to calculate the percentage, then we have to know the formula of it, or otherwise as sometimes we can calculate average as well as percentage, right? If we have total 100 marks of papers, right? In English there is 98 out of 100, in Hindi 89 out of 100, and same in mathematics. It means every paper is of 100. Then we can, if we calculate the average or we calculate the percentage, the result will be same. So I am using very easy formula here. Choose the total by equal to sign, divide by number of papers, number of exams. It's 3, and press enter key. In this way, you can calculate the percentage. But mostly we need only 1 or 2 places after decimal, right? Here we have many more. We have to reduce it. And to reduce, we just select the data and add the number group in the home tab. In the number group, we have 2 buttons. First is decimal, decrease decimal, and another one is increase decimal. Here we want to decrease the decimal. Click on this button once. Look, it is decreasing again and again. Suppose I want only 1 place after decimal, then I can leave this value here and alignment again. In this way, you can calculate the total marks obtained means and the percentage of it, right बेटा? तो ये हमारी एक कमांड हुई है. इसके बाद मैं जो आज एक पोर्शन आपको करवाने वाला हूं, सबसे पहले तो मैं कुछ फीचर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एक्सेल के अंदर आप कौन कौन से फीचर्स ले सकते हैं. लुक बेटा, suppose you want to write the numbers of any value like 1 2 3 4. Let's take a very easy example. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, and finally 10. This is very short series, so that we can write manually, no problem in all. But if you have to write 100 or 1000, then you will face problem. To solve this problem, Excel provides us automatically series, right? तो वो ऑटोमेटिक सीरीज कैसे होती है, वो कैसे आएगा? आपको क्या करना होता है कि आप सिर्फ 2 वैल्यूज लिखिए, 1 and 2. आफ्टर दैट सिलेक्ट द बोथ. अब ये सिलेक्शन क्यों हुआ? सिलेक्शन इसलिए होगा बेटा क्योंकि कंप्यूटर को हमें ये पता लगेगा, कंप्यूटर को हम ये बात बता रहे हैं, कंप्यूटर को इससे पता लगेगा कि नीचे की जो वैल्यू है उसमें से ऊपर की एक वैल्यू के बीच में जो गैप है वो कितना है. जैसे हम 2 में से अगर 1 को लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1. या फिर 1 के अंदर ये 2 कैसे बनेगा, यानी 1 के अंदर एक और वैल्यू प्लस करेंगे तब 1 हो जाएगा. उसके बाद इन दोनों को हमने सिलेक्ट करना है. इन द सेम वे वही बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको एक बॉक्स नजर आएगा, फिर आपका माउस एरो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस साइन के अंदर, और इसको पकड़ के यहां से आपको ड्रैग करते हुए जाना है जहां तक भी आप चाहें, लाइक दिस. इन दिस मेथड देयर इज नो नीड to write again and again. Secondly, there is 0% chance for any error, any mistake. It means we are totally free of fear that कि हमने कहीं कुछ छोड़ तो नहीं दिया. There is no chance of missing values, right? तो ये एक सीरीज के अंदर आपका आएगा और इसको आप जितना मर्जी दूर तक लेके जा सकते हैं. It's totally upon you. जैसे मैं इसको बड़ी फास्ट लेके जा रहा हूँ और मैंने यहाँ लाके छोड़ दिया इसको, ये देखिए. यानी 742 कब लिखे गए ये हमारी माउस के मूवमेंट करने की स्पीड पे डिपेंड करेगा. कंप्यूटर ऑलवेज सपोर्ट्स यू, राइट बेटा. अब इसको मैं वापस कर देता हूं ताकि वापस आया जा सके. एक मेथड ये हुआ, ये तो हुई सिंपल कैलकुलेशन. नाउ वी आर मूविंग ऑन रैंडमली और ओड नंबर, इवन नंबर्स. सपोज वी वांट टू राइट सम odd numbers like 1, और इसी तरह आप even number भी 3. Now again select. This time we are informing the computer that the gap is of 2. यहां पर अब अंतर जो है वो 2 का है, राइट बेटा. तो इन 2 को आपने सिलेक्ट किया और आफ्टर दैट सेम वे लुक नाउ 1 के बाद 2 मिसिंग है, 3 आ गया, फिर 4 मिसिंग है, 5 आ गया, और लास्ट तक ऐसे ही कहां तक जाएगा जहां तक आप इसको लेके जाना चाहते हैं. नो प्रॉब्लम एट ऑल. और इसी तरह से इसका अपोजिट कर लीजिए, जैसे 2 देन 4, इसको आपने सिलेक्ट किया और यहां से सेम वही कॉर्नर से इसको ड्रैग कर दिया इस तरह से. नाउ इन दिस वे वी कैन ऑटो अरेंज द सीरीज. ऑटो अरेंज, इसको हम ऑटो अरेंज बोलते हैं, ठीक है. तो ये यहाँ पे हो गया. इसके बाद मैं आपको जो एक बात और बोलने वाला हूं, इसमें एक ऑटो फिल ऑप्शन हम लोगों ने करनी है. ऑटो फिल ऑप्शन, ऑटो फिल ऑप्शन हमें क्या बताती है कि अगर आपको कुछ नेम, जैसे नेम ऑफ डे या नेम ऑफ मंथ्स, ठीक है, ये आपको अगर करना है तो आप कैसे इसको कर सकते हो. सपोज आपने लिख दिया मंडे, सिंपल. उसके बाद आपको लिखना है ट्यूसडे, बट देयर इज नो नीड ऑफ इट. सिर्फ मंडे को ही लिखना है और उसको ड्रैग करते हुए चले जाना है इस तरह से. बिकॉज दीज आर द फीडेड वैल्यूज इन द कंप्यूटर्स मेमोरी. ये कंप्यूटर की मेमोरी में फीड होता है पहले से ही. तो जो कंप्यूटर की मेमोरी में फीड है उसको हमें डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ नाम लिखना है और उसको नीचे तक ड्रैग कर देना है. दिस फीचर इज कॉल्ड ऑटो फिल. ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, फिल मीन्स इसको भर देना. ये अपने आप इसको आगे सही वैल्यू से भर देता है. एंड सपोज यू राइट ओनली MON and drag. After dragging, you can observe that all the day names will come in 3 alphabets only. Right?
सेम वे अगर आप इसको स्मॉल में कर देते हैं, मंडे, सेम पैटर्न इट विल फॉलो। अगेन अगर स्मॉल में आपने MON कर दिया, सेम ऐसे, राइट बेटा। तो इसको बोलते हैं ऑटो फिल ऑप्शन। इस तरह से ऑटो फिल ऑप्शन आपकी आ जाएगी यहां पर। नेक्स्ट वेरी स्मॉल कमांड इज डिलीटिंग अ रो और अ कॉलम। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मूलाज पे, राइट बेटा। देखो इसमें दो चीजें होंगी, या तो आप रो को डिलीट करना चाहोगे या फिर आप कॉलम को डिलीट करना चाहोगे। जिसको भी आपको डिलीट करना है वो दो तरीके से आप लोग कर सकते हैं। इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों ने देखना है। इसके लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा सा और इनलार्ज कर देता हूं सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। Look, suppose you want to delete number 4. Completely you want to delete it. Then no need to select from here. You should select from on the row number and right click on it from there and delete key. It will delete it. Right? Okay, beta. In this way we can delete it. After that, अगर इसको वापस आपको लेके आना है तो वेरी सिंपल, यू कैन मेक अंडू, राइट ना। इसको हम अंडू कर सकते हैं। ये मैंने अंडू कर दिया, या Ctrl+Z इज द शॉर्टकट की ऑफ इट। सेम वे इफ यू वांट टू डिलीट एनी कॉलम देन सिलेक्ट फ्रॉम द कॉलम हेडिंग। लाइक मैथ्स को आपको डिलीट करना है। अच्छा, यहां जब आप इसको डिलीट करोगे तो प्लीज ऑब्जर्व द चेंज इन द मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड द परसेंटेज, राइट। Look, the error will come. Why this error is come? Because in the formula we already save what f value, but when we delete this column, f value automatically converted into g. तो जो g वैल्यू है, g के अंदर जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं ये ऑटोमेटिकली f बन जाते हैं, और फॉर्मूला के अंदर वो f दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाता है। ये देखो, ये देखो, क्योंकि फॉर्मूला के अंदर आपने f दिया हुआ है और ये तो टोटल आ गया, तो इसीलिए ये रॉन्ग आपको शो कर देगा। ठीक है, तो इससे सेव होने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं कि जब भी आप इसको डिलीट करो तो आपको एक बार फॉर्मूला को दोबारा से चेक करना पड़ेगा। इसको डबल क्लिक कर दो और अब की बार सिर्फ दो वैल्यू हैं, इनको आप हटा दीजिए। ये देखो टोटल एक ठीक आ गया, डबल क्लिक कर दो नीचे तक, अपने आप चेंज हो जाएगी। राइट, आई होप इट इज वेरी इजी, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और अंडू करके आप वापस लेके आ सकते हो। तो ये तो थी सिंपल कमांड्स जो आपको जानना जरूरी था कि हाउ वी कैन डिलीट एंटायर रो और एंटायर कॉलम। बट द डिलीशन, अनदर पार्ट ऑफ डिलीशन इज व्हेन वी वांट टू डिलीट सम स्पेसिफिक सेल्स। कुछ स्पेसिफिक सेल हमें डिलीट करने हैं, लाइक दिस। सपोज हमें पता लगा कि भाई ये तो जो वैल्यूज थी ये इस तरह से आनी थी, ऐसे हमें पता लगा कि ये जो वैल्यूज हैं डी के सामने वाली, इंग्लिश में हिंदी एंड मैथ्स की वैल्यूज, ये गलत हैं, इसकी जगह ये आना था और ई के सामने ये वाली वैल्यूज आनी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वैल्यूज हमने गलत एंटर कर दी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जस्ट सिलेक्ट ऑन, देन राइट क्लिक इनटू द सिलेक्शन and delete. When you press delete key, then it will ask you, let me see the magnifier. So that you can see it very clearly. Just wait. Look beta, now I hope it is visible. जब आप इसको किसी स्पेसिफिक सिलेक्शन पार्ट को अगर आप डिलीट करते हैं
तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ मैसेज. दिस इज मैसेज फ्रॉम डिलीशन. पहला ऑप्शन क्या है? शिफ्ट सेल्स लेफ्ट. कहते हैं क्या आपको इसको डिलीट करना है जिस वैल्यू को आपने सिलेक्ट किया और बाकी वैल्यू लेफ्ट साइड आ जाए, या फिर वो आपको सजेशन भी दे रहा है अपनी तरफ से कि शिफ्ट सेल्स अप, कि आप इसको अप करना चाहते होंगे तो आप कर दीजिए. पूरी रो डिलीट करनी है, पूरी रो डिलीट हो जाएगी. पूरा कॉलम डिलीट करना है तो पूरे तीनों कॉलम डिलीट हो जाएंगे. बट वी नीड टू शिफ्ट सेल्स अप. तो इसको हमने ओके किया और जैसे ही ओके करेंगे तो जो चीज हम चाह रहे हैं वो हो जाएगी. ये देखिए, मैं दोबारा अब करके दिखाता हूं इसको, क्योंकि एक बार मैंने वैल्यूज दिखा दी. मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, डिलीट, और इसमें सेल अप की ऑप्शन, क्योंकि मैं सेल को अप करना ही चाहता हूं. ये मैं चाहता हूं कि डिलीट हो जाए, ये सारा का सारा पोर्शन ऊपर चला जाए, ये दोनों वैल्यूज. और देखो ऐसा ही हुआ है, लुक नाउ. लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज आ गया, क्योंकि यहां भी आ गया था. इसको डिलीट करेंगे और ऊपर की वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को सिलेक्ट करके और इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए दोबारा. ओके, इस तरह से वैल्यूज आपकी चेंज हो जाएंगी. अच्छा, एक बार लिखने के बाद इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यूज, देन द चेंज विल कम ऑटोमेटिकली इन द रिमेनिंग पोर्शन. लुक नाउ, यहां पे देखना आप, अभी 283 है, पहले कितना था? यहाँ 95 था, तो 278 था, 92.7 था. और अब जब मैंने इसको चेंज कर दिया है, अब देखो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी. ये इसलिए चेंज हुई है क्योंकि हमने फॉर्मूला के अंदर क्या लिखा था? सेल एड्रेस लिया था, ना कि कोई वैल्यू ली थी. अगर कोई वैल्यू लेते हम तब वो चेंज ना होता, इसीलिए सेल एड्रेस लेना जरूरी है. इसका मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ छोटा सा. जैसे मैंने यहाँ लिखा 15 और यहाँ मैंने लिखा 25 और यहाँ पर मैंने इनकी वैल्यू प्लस करनी है, तो मैंने क्या लिख दिया? 15 प्लस 25. दिस टाइम आई एम यूजिंग ओनली वैल्यूज, नोट द सेल एड्रेस, और मैंने एंटर कर दिया, टोटल आ गया. अब मैं फिर दोबारा से यही वैल्यूज लिख रहा हूं और अब की बार आई विल यूज फॉर्मूला विद सेल एड्रेस. अब मैंने क्लिक किया, मैंने लिया E11 प्लस F11, एंटर किया, रिजल्ट विल बी सेम. यहां तक रिजल्ट सेम आएगा, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर मैं इसमें चेंज करूंगा, चलो मैं यहां चेंज करता हूं. पहले मैंने इसमें चेंज किया जहां मैंने सेल एड्रेस लिया है. लुक, द चेंज विल ऑटोमेटिकली अपडेटेड, राइट. लेकिन अगर मैं यहां चेंज कर देता हूं तब चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां तो फॉर्मूला के अंदर हमने क्या दिया हुआ है? 15 प्लस 25, राइट ना. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने दिए हुए सेल एड्रेस, यानी सेल के अंदर जो कुछ भी आप चेंज करते रहेंगे, सपोज आई टाइप देयर 100, इट विल चेंज ऑटोमेटिकली. So the best way to calculate the formula or calculate the values is to use cell address into your formula. Okay बेटा, अब बात आती है कि फंक्शन, फॉर्मूला क्या है और फंक्शन क्या है. फॉर्मूला आप मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, फॉर्मूलाज आप साइंस में भी यूज करते हैं, फॉर्मूलाज आप लाइफ में भी यूज करते हैं. अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूला. इसके अंदर कैसे होगा? एक्सेल के अंदर फॉर्मूला का मतलब क्या है? जो कैलकुलेशन हम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला. अभी जो हमने किया, ये जो ऊपर हमने, ये देखो, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, ये जो हमने बनाया D4 प्लस E4 प्लस F4, दिस इज फॉर्मूला, क्योंकि ये हमने बना दिया है, राइट. तो इसको बोलेंगे फॉर्मूला. फॉर्मूला, वी हैव टू टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज इन एक्सेल. नंबर वन इज सिंपल फॉर्मूला और बेसिक फॉर्मूला, एंड अनदर इज कंपाउंड फॉर्मूला. कंपाउंड मीन्स मिक्स, मिला हुआ. कैसे होता है वो? लुक नाउ, अगर मैं इसकी जगह ये जो मैंने परसेंटेज दिया, ये जो मैंने कैलकुलेट किया, ये मैंने किया बहुत ही सिंपल फॉर्मूला पे. लेकिन मैं कैसे और इसको कर सकता हूं? इफ यू वांट टू कैलकुलेट, और लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ मैथमेटिक्स. सपोज
here we are going to calculate the simple interest, right? Principal suppose हमारे पास है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है, आर से मैं डिनोट कर रहा हूं, इज 10%, टाइम हमारे पास है इज इक्वल टू 3 years, और मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, यही फॉर्मूला होता है मैथ्स का, सिंपल का। आपको अगर ये कंप्यूटर पे अप्लाई करना है, बिकॉज हमें इसको मल्टीप्लाई करना तो आ गया लेकिन डिवाइड करना नहीं आया अभी, तो हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है, ब्रैकेट शुरू करो, फर्स्ट वैल्यू लो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के लिए वी नीड स्टार बटन, देन 10%, देन अगेन, एंड देन टाइम। यहां पर मैं कुछ एक चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, यहां में 10% नहीं, मैं सिर्फ 10 लिखता हूं, राइट? देन 3। यहां पे स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला को हम। फर्स्ट ऑफ ऑल P डिवाइडेड बाय T और R सॉरी, देन डिवाइड P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T, T क्या है 3, लेकिन 3 नहीं लेना है, सेल एड्रेस लेना है, और इस सारे को हमने ब्रैकेट में डाल दिया, ध्यान से देखना है आपने, ये ब्रैकेट मैंने किया और इसके लास्ट में जाके मैंने इसको किया डिवाइड बाय 100। ये पूरा पहले ब्रैकेट का सॉल्व होगा, उसके बाद स्लैश करके 100 हो जाएगा, ये देखो, यानी ये 6,000 रुपीज आ गया है इंटरेस्ट, ठीक है बेटा? क्योंकि एक साल का अगर आप देखो सिंपल इंटरेस्ट है तो 10 के हिसाब से 2,000 हो गया, तो 3 years का कितना बन गया 6,000। तो ये जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ये वाला, पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिया ये सिंपल फॉर्मूला कि 3 वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करा दिया, लेकिन मल्टीप्लाई कराने के बाद एक और स्टेप हम आगे चले गए इसमें, जिसके कारण ये कंपाउंड बन गया, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड फॉर्मूला। तो इसको हम कंपाउंड बोलेंगे, और अगर सिंपल देखना है तो सिंपल हमने यहाँ पे किया, ये वाला फॉर्मूला, इसमें हमने एक ही वैल्यू लिया, यानी एक ऑपरेटर के बाद, ऑपरेटर क्या होते हैं इसमें, जो साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, ठीक है? ये सारी चीजें, ये सब हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। जब किसी फॉर्मूला के अंदर एक से ज्यादा ऑपरेटर्स हम यूज करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड फॉर्मूला। अगर हम करते हैं 2 वैल्यूज को प्लस किया, एक को माइनस कर दिया, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंपाउंड फॉर्मूला। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। तो ये हमारे थे फॉर्मूलाज। फंक्शंस क्या होते हैं, अभी सिर्फ आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं फंक्शंस की, इसके बारे में बात करेंगे कल डिटेल में, बिकॉज वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम। लुक बेटा, functions are predefined formula in Excel, predefined formula। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको यहां पे देता हूं, ये सब मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं so that you can observe very clearly। equal to sign, suppose I want to calculate, I want to find out the maximum value in the D column। ये जो वैल्यूज हैं इन सब में मैं मैक्सिमम वैल्यू को ढूंढना चाहता हूं इन सब में। ये तो चलो देखते पता लग रहा है कि 98 है, लेकिन अगर ये बहुत लंबी लिस्ट है तो हम कैसे करेंगे, देखिए इधर इक्वल टू साइन, देन राइट मैक्स। अब देखो जैसे मैंने मैक्स लिखा तो नीचे कुछ ऑप्शंस आ गई हैं। ये जो fx लिखा हुआ है ये फॉर्मूला है, लेकिन कौन सा है, फंक्शन के साथ, ये हमारे फंक्शंस हैं। मैक्स के बाद ब्रैकेट शुरू करनी है और उस रेंज को सिलेक्ट कर देना है जिसके अंदर आपको वैल्यू निकालनी है। ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ जाएंगी, लाइक D4, ये जो कॉलन साइन है इट मीन 2, कि D4 to D8, यानी D4 से लेकर D8 तक, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर।
लुक, इसने अपने आप कैलकुलेट कर दिया और इसको ड्रैग कर दो यहां तक, ये देखो। ओके, तो इस तरह हमें ये बात पता लग गई कि कैसे हम किसी वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सीरीज से। इसमें 96 मैक्सिमम है, इसमें 100 है, इसमें 283 है और परसेंटेज वाइज 94.3 वाला फर्स्ट इस ग्रुप के अंदर है। तो इस तरह से हम फंक्शंस ऐसे ही मिनिमम का फंक्शन होता है, एवरेज का फंक्शन होता है, टुडे का फंक्शन होता है। अगर आप टुडे लिख के इसमें देखते हैं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आज की डेट इसके अंदर मेंशन हो जाएगी। देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब और एनी Google website. There are a lot of options. Or if you have your book, your own book, then you can also search from your book. There are a lot of functions already given into your book. Right, beta? So I am from my side, I am ending this meeting. Before it, please be stay because I am taking your attendance now.